मैं अपने बुक से पढ़ाता हूँ, आप लोग बस सुनिए और फिर सुन के देखिए कैसा लग रहा है। क्या है कि when patient comes to us, so some patient may have symptoms like amenorrhea. So definition of that amenorrhea is this is symptom of absence of menstruation. When there is no menses, that symptom is known as amenorrhea. Causes may be causes may be of three types. First cause is physiological cause. The type of amenorrhea occurs during pregnancy. This is physiological amenorrhea. During pregnancy, lady is pregnant, so menses stops. And sometime during lactation, when she is breastfeeding, menses are absent. Before puberty and after menopause. Before puberty, there is no hormonal changes in body, so no menstrual cycle, so no menstrual period. And after menopause, all the uterus and organs are staying, so no menstruation. Pregnancy is far the commonest cause of amenorrhea. Pregnancy is by far the commonest cause of amenorrhea, commonly secondary and rarely primary. Then second one is pathological causes of amenorrhea. Amenorrhea is absence of menstruation. So pathological causes are the basic causes of amenorrhea are the following: disorders of menstrual outflow tract or uterus. Means there may be outflow tract, cervix and all that endometrium. There may be disorders in the uterus or outflow tract. And second one is disorders of ovaries. There may be polycystic ovarian disease or fibroid or ovarian cyst or other problems. So disorders of ovary are is the cause of absence of menstruation. Third one is disorders of anterior pituitary gland. So I will teach you what is the pituitary hypothalamic pituitary ovarian axis. I will explain in next lecture. So disorder of anterior pituitary gland, and this may be the cause of absence of menstruation. Fourth one is disorders of central nervous system, means hypothalamic that hypothalamic ovarian axis. There may be central nervous system defect. Fifth one is environmental stress. Sixth one is all other causes working through above. Environmental stress may be in hilly areas due to cold and humidity. There may be absence of menstruation, and all other causes working through above. Pathological amenorrhea can be either primary or secondary. Two types of amenorrhea, pathological type of. So pathological means disease related. So first one is primary and second one is secondary. Primary amenorrhea. Primary, the menarche does not appear even when the girl is over 18 years. After 18 years, she is not getting normal menses. So this is primary cause of amenorrhea. Second one is primary amenorrhea can develop due to any of the following causes affecting the menstrual function. So these are the causes: congenital obstructive lesions at lower genital tract, means congenital abnormalities. It may be small uterus, absence of fallopian tube, absence of ovaries, and other causes, or elongated cervical area. Cryptomenorrhea. This may be due to imperforate hymen. Hymen is imperforate, means very much rigid, and or transverse septum above hymen, means one transverse septum is present. That is not necessary. That is present above hymen. Hymen that hymen is what a ligamental part is present in vaginal orifice. The girl with such lesions shows normal endocrine system. Although a girl with cryptomenorrhea is brought to a clinician as a case of primary amenorrhea, the condition is not actual primary amenorrhea. Means girls is brought to clinician or gynecologist that she is not getting menses, but some pathological causes are present in her. Second one is congenital agenesis of uterovaginal canal or uterus. That is Rokitansky-Kuster-Hauser symptom. The vagina is absent in that. No vagina is present. This is the hormonal and genetical problem. Uterus is absent. Ovaries and tubes are normal, but vagina is absent and uterus is absent. External genitals and secondary sex characters are female. Means she has pubic hairs, breast development, and axillary hairs and feminine character.
but no vagina, no uterus. The karyotype is 46XX. In that, the if you see the chromosome level, that is 46XS. In one-third cases, kidneys are abnormal, then IVP is necessary. Endocrine system is normal, but no vagina, no uterus. This is isolated development of defect or rarely genetical inherited. That may be developmental defect. During embryology, you can read in embryology book that there may be developmental defect or genetical inherited problem. Second one is uterine agenesis, rudimentary or absence of uterus, but vagina patent. Means no uterus is present, but vagina is present, and that vagina is patent. Means no opening in that. Endocrine system is normal. Third one is faulty gonadal development. This is the commonest cause of amenorrhea. Means no gonads are developed in that. Next one is sex chromosomal anomaly, Turner syndrome. Turner syndrome is ovarian agenesis. Is a syndrome of primary ovarian aplasia, sexual infertility, short stature, somatic anomalies like waving of neck. Means these are all the chromosomal defects. Turner syndrome you can read in the book. And the ovarian aplasia develop as a result of sex chromosomal deletion in the ovum or sperm. In this, the karyotype is 45XO, means 45 chromosomes in which there is single X chromosome. Then after that, another gonadal abnormalities, polycystic ovarian disease is the main cause. Young girl in adolescence can develop polycystic ovarian disease with primary amenorrhea, and this may lead to obesity and hirsutism. Hirsutism means all over her face hairs are present, means beard and mustache are present, and no menses are present. The condition is further elaborated under secondary amenorrhea. This is secondary amenorrhea. First one was primary amenorrhea, means genetical defect, then abnormal development, chromosomal defect are primary amenorrhea, and other means disease associated diseases. These are secondary amenorrhea. Hypogonadism with obesity means all the hormones are all hormonal secretions are impaired. So obesity is present. They may manifest primary amenorrhea in adolescents. Fourth one is congenital adrogenital syndrome. Means due to congenital adrenal hyperplasia shows precocious virtulism, short stature, amenorrhea in phenotype female with ovary, female internal genitalia but virilized external genitalia. Means then after that, pancreas, juvenile diabetes mellitus can rarely be the cause of amenorrhea. When there is juvenile diabetes mellitus, means diabetes is present, another type of one diabetes is present, then it may cause of amenorrhea, means menses are not coming. Sixth one is hypothyroidism. When a patient is suffering from hypothyroidism. Hypothyroidism means low secretion of thyroid hormones. It may rarely be the cause of primary amenorrhea. Seventh one is pituitary cause. Pituitary dwarfism caused by hypophyseal growth hormone deficiency result in dwarfism, genital hypoplasia and primary amenorrhea. Means pituitary gland secretions are hampered in that patient. So it may be pituitary tumors in puberty can cause hypogonadotrophic hypogonadism, where girl grows into adulthood without development of breast, ovaries and genitalia. Eighth one is hypothalamic causes. Hypothalamic GnRH deficiency is encountered in delayed puberty, primary amenorrhea, sexual infantilism and anosmia. Next one is psychogenic. Anorexia nervosa means due to depression. It may develop anorexia nervosa means depression can develop in adolescent and young girl resulting from psychosomatic trauma and is manifested by afraid of gaining weight, marked anorexia, weight loss and amenorrhea. Means due to stress or depression, deep shock or deep depression, it may lead to
secretion of GnRH. Ninth one is neurogenic, means injuries in at the base of skull, meningitis, epilepsy can cause primary amenorrhea. This is CNS abnormality. 10th one is systemic diseases like endometrial tuberculosis, means tuberculosis is present in endometrial area. Pulmonary tuberculosis and severe anemia are important causes in the developing countries. 11th one is nutrition, loss of weight below 40 kg and gain in weight above 70 kg, means low weight is the cause. And 12th one is drugs, anabolic steroids, androgens, phenothiazine. Drug addiction may cause primary amenorrhea. ठीक है, अभी मैंने इतना पढ़ा दिया. अब मैं आयुर्वेद वाला पार्ट पढ़ाता हूँ आप लोगों को. मैं ना इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पार्ट भी पढ़ाऊंगा. आप लोग ना प्राइमरी एमेनोरिया भी पढ़ लीजिएगा अपने, जो भी आप लोग के पास बुक है तो अपने बुक से भी पढ़िए. एमेनोरिया मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को क्या समझ रहा है, क्या डाउट है मुझे पूछेगा. तो मैं मॉडर्न पार्ट भी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और कुछ मैं आयुर्वेद पार्ट भी बताऊंगा. अभी क्या है कि हम लोग आर्तव दृष्टि देख रहे थे, तो जो शिप्रा का बुक है इसमें पेज नंबर 6 निकालिए और अपना पीडीएफ में थर्ड वाला है, पीडीएफ वाला थर्ड, और बुक का पेज नंबर 6. इसमें वातज आर्तव दृष्टि बताया है. पेन वात वर्ण वेदनम वातेन, मतलब जिसमें पेन होता है, वायु के कलर की तरह वेदना होती है, और उसमें जो मेंसेस का ब्लड आता है वो कैसा होता है, तो तनु होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस वाला आता है. जैसे मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा कि पैराशूट का ऑयल जो था पहले के जमाने में आता था, पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो उसमें ना स्निग्धपना बहुत ज्यादा था. आप लोग सरसों का तेल क्या करिए, अपने फिंगर्स में लीजिए और दोनों फिंगर्स ऐसे चिपका के देखिए तो बहुत ज्यादा स्निग्धपना रहता है. आजकल जो पैराशूट आ रहा है ऑयल वो डबल रिफाइंड आता है, तो उसमें चिकनाहट नहीं है, मतलब उसको आप करेंगे तो पानी जैसा लगता है. तो इसी तरह से जो मेंसेस का आता है उसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, स्नेहांश कम रहता है. फिर फेनिल होता है, मतलब फोर्थ रहते हैं, उसमें झाग रहती है. फिर अरुण वर्ण का आता है, अल्प मात्रा में आता है, पिच्छिल होता है और बहुत पेनफुल आता है. और बहुत ज्यादा, अभी डिसमेनोरिया में कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो डिसमेनोरिया में भी ऐसे ही होता है कि बहुत पेनफुल मेंसेस आते हैं. तो ये वातज आर्तव दृष्टि में होता है. फिर आचार्य हारिस के अनुसार वेदना के साथ काले रंग का या पक्व जम्बू फल के वर्ण का रजस्राव, मतलब जिस तरह से जामुन का पका हुआ फल रहता है उस तरह के कलर का रजस्राव जब होता है तब उसको बोलते हैं वातज आर्तव दृष्टि. सेकंड है पित्तज आर्तव दृष्टि, मतलब इसमें क्या होता है कि पित्त का डोमिनेंस रहता है. अगर कोई स्त्री जो है, लड़की है, वो बहुत ज्यादा अम्ल रसात्मक, कटु रसात्मक, लवण, क्षार, जो भी पित्त वर्धक आहार विहार है उसका सेवन कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, मतलब पित्त जैसा उसमें पेन होगा तो बर्निंग होगा. फिर उसमें क्या होगा कि पित्तज आर्तव दृष्टि में क्या होगा कि जो मेंसेस आएगा ना तो जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसी तरह से वजाइना एरिया में, सर्विक्स एरिया में छाले पड़ जाते हैं, अल्सरेशन हो जाता है मुंह के छाले की तरह. और किंचित पित्तम पिच्चिलम अनिलम व दहदीव प्रवर्तते पित्तेन, इसका मतलब पित्त के वर्ण एवं वेदनाओं से युक्त आर्तव स्राव, मतलब जिस तरह से पित्त होता है, बाइल येलो कलर का होता है, उस तरह का येलोइश और बहुत ज्यादा बर्निंग युक्त जो आर्तव स्राव होता है वो पित्तज आर्तव दृष्टि होती है. फिर सेकंड वन है कुछ पीले या नीले वर्ण का पिच्छलता रही आर्तव, मतलब पीले रंग का आएगा, नीले रंग का आएगा और उसमें पिच्छलता नहीं रहेगी, वो एकदम ही कैसा तो अजीब तरह का आएगा. फिर है आर्तव के प्रवर्तन, निकलने के समय अग्नि के जलने सदृश वेदना की अनुभूति, मतलब मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, तो पेशेंट ऐसे बोलते हैं जैसे मिर्ची का पानी, आप लोग ना रेड चिली पाउडर जो होता है उसको पानी को ऐसे मिक्स करिए और पीजिए तो जो टेस्ट होता है उस तरह का वहां पे वजाइना में बर्निंग होता है, बहुत जलन होती है, तो ये पित्तज आर्तव दृष्टि होती है. फिर आचार्य हरित के अनुसार जपा कुसुम या कुसुम नाम का जो फ्लावर होता है ये रक्त के कलर वाला या दाह युक्त होता है, शोष होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ये ड्राइनेस होती है. और मूत्र क्रिच, मतलब यूरिन जो होता है वो बहुत ही थोड़ा ड्रिप बाई ड्रिप यूरिन होता है, और उसमें रजस्राव जो होता है ना वह भी बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ से होता है, यूरिन भी नहीं होता है, और इसमें ज्यादातर यूटीआई जो रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके सारे सिम्टम मैच होते हैं. फिर थर्ड वन है कफज आर्तव दृष्टि. कफज आर्तव दृष्टि में क्या होता है कि कफकर आहार विहार का सेवन किया जाता है, इसकी वजह से श्लेष्मा वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, मतलब
श्लेष्मा का जो बलगम का जो कलर होता है उस तरह का ये चिपका चिपका स्त्यान कफ की तरह ये निकलता है। फिर मज्जोपसृष्टम प्रभुतम विबद्धम तामसी च किंचित मज्जति श्लेष्मणा, मतलब कफ के वर्ण और वेदनाओं से युक्त जो आर्तव होता है वो कफ के जैसा होता है। फिर विस्त्र गंधी होता है, मतलब कुछ अलग ही स्मेल का होता है। फिर मज्जा मिश्रित होता है, मतलब उसमें मज्जा बहुत ज्यादा रहता है। फिर अत्यधिक गाढ़ा होता है और जल में डालने पर कुछ डूबने वाला आर्तव का स्राव होता है, मतलब वो पानी में डूब जाता है, इस तरह का होता है। फिर आचार्य हारित के अनुसार गाढ़ा होगा, पिच्चिल आर्तव होगा, जड़ता और मूत्र रोध उत्पन्न करने वाला होगा, आलस्य तंद्रा और निद्रा से युक्त होगा, मतलब कफ का डोमिनेंस है तो बहुत ज्यादा ऐसे लेजीनेस आएगा, बहुत ज्यादा ना ऐसे झपकी आएगा, नींद जैसा आएगा, थकावट आएगी, और यूरिन भी अच्छे से नहीं होगा, और हैवीनेस आएगा, और बहुत ज्यादा चिपचिपा व्हाइट डिस्चार्ज टाइप कुछ तो आएगा, और गाढ़ा गाढ़ा आएगा, और बहुत ज्यादा नींद आएगी। फिर फोर्थ वन है कुणप गंधी आर्तव दृष्टि। कुणप गंधी मतलब है कुणप गंध्य अल्पम च रक्तेन, मतलब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से डेड बॉडी आप लोगों ने डिसेक्शन किया होगा तो वहां पे डेड बॉडी का जो गंदा स्मेल आता है, या जैसे चूहा मरा हुआ होता है तो उसकी तरह का स्मेल वाला ये आर्तव आता है, अधिक मात्रा में आर्तव आता है। फिर रक्त के वर्ण का आर्तव आता है, पित्त के वेदनाओं से युक्त होता है, ऐसा आर्तव आता है। फिर फिफ्थ वन ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि। ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि में क्या होगा कि गांठ गांठ ऐसे क्लॉट्स आते हैं, वात और कफ के दोषों से लक्षण से युक्त होता है, और इसमें गांठ गांठ आते हैं बहुत ज्यादा। सिक्स्थ वन है पुति पुय निभम च पुय निभम आर्तव दृष्टि, मतलब इसमें पित्त और कफ के दोषों के लक्षण से युक्त होता है। अष्टांग हृदय कारणे रक्त एवं पित्त के कारण उत्पन्न हुआ पुति पुय, मतलब इसमें क्या होता है पस फॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसा जो मेंसेस आएगा ना तो आप लोगों ने कहीं फोड़ा में ऐसे देखा पस आता है, और थोड़ा सेमी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, उस तरह का पुति पुय आर्तव दृष्टि होती है, और इसमें पेन बहुत होता है, और इसमें बर्निंग भी बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में क्षीण आर्तव दृष्टि, इसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में आर्तव आता है, बहुत ज्यादा, तो यह पित्त एवं वायु के लक्षण से युक्त होता है। फिर आठवां नंबर है कि सन्निपात के कारण, तीनों दोषों के प्रकोप के कारण इसमें मूत्र का भी स्मेल आएगा, पुरुष का भी गंदी आएगा स्मेल आएगा, या डायरेक्ट यूरिन ही आ रहा है, या वो क्या हो रहा है यूरिन जो है वो ना थोड़ा सा ऑस्मोसिस होके और अंदर ही अंदर ऐसे लीक होके आ जाता है आर्तव के साथ, ऐसा होता है। उपद्रव जो होता है अबीजम भवती, मतलब स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता अगर मेंसेस का कुछ प्रॉब्लम रहा तो। फिर इनफर्टिलिटी, मतलब प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा ऐसा इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अब इसमें ऐसा बताया है कि साध्य साध्यता, पेज नंबर 8 देखिए शिप्रा का बुक का, तो इसमें बताया है कि सुश्रुत संहिता के हिसाब से साध्य जो है वो वातज पित्तज कफज साध्य है। असाध्य कौन से है तो कुड़प गंधी, मतलब जो डेड बॉडी की तरह स्मेल वाला रहे, कुड़प गंधी डेड बॉडी का स्मेल वाला इसलिए आ रहा है कि वहां पे कुछ सेल्स हैं वो डेड हो गए और उनका स्मेल आ रहा होता है। फिर क्षीण आर्तव दृष्टि, ग्रंथिभूत, मतलब जो क्लॉट्स क्लॉट्स जैसे आ रहे हैं। फिर पुति पुति सन्निप वेब नेप, और पुरुष मूत्र पुरुष गंधी, ऐसा। अष्टांग संग्रहकार ने बोलते हैं कि वातज पित्तज कफज क्षीण वाला है वो साध्य है, और असाध्य मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो कुणप गंधी, ग्रंथिभूत, पुति पुय पुयनिव और मूत्र पुरुष गंधी। और फिर दलहन जो है सुश्रुत के कमेंटेटर नहीं, अष्टांग हृदय वाले जो हैं वो बोलते हैं कि कृच्छ आते हैं, तो वातज पित्तज कफज कुणप गंधी क्षीण ग्रंथिभूत और पुयनिव, यह जो है ये कृच्छ आते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो कठिनाई से हो सकता है, और ये प्रैक्टिकल है, मतलब अष्टांग हृदय कार ने जो बताया है वो प्रैक्टिकल है। पेशेंट जो है वो खाना पीना भी कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनको ना ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद में डलहन जी हैं, उन्होंने बोला है कि शुक्र आर्तव दोष स्वभाव के कारण याप्य नहीं होते, मतलब अगर यह जो है इसमें दुष्टि होती है, आर्तव दोष हो गए तो ये ना याप्य नहीं होते हैं, मतलब ये ठीक हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। चिकित्सा सिद्धांत जो है ये बता रहे हैं कि स्निग्धम वातम विरिक्तम च निरूह अनुवासिनीम योजित योजित शुक्र दोषार्थम चमक बस्तिना। और दूसरा बताया है उन्होंने सुश्रुत संहिता में विधिनम उत्तर बस्त्यंतम कुर्याद आर्तव शुद्ध है श्रेणाम स्नेहादि युक्तानाम चतुस्रश आर्तवार्थिषु कुर्याद कलगान पिच्छु चापी पथ्यांश चामनानि चा, मतलब है कि दोषों के अनुसार उसमें स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, पंचकर्म करना है, और बार बार उत्तर बस्ती देना है। उत्तर बस्ती मतलब थ्रू वजाइना हम लोग ना फिल्म से रिट्रैक्ट करके और कुछ मेडिसिन इंसर्ट करते हैं वहां पे यूट्रस में। फिर दूसरा है योनि व्यापक वर्णित कल्क बीज और पत्य भोजन का प्रयोग,
मतलब उसमें जो कल्क बताया, योनि व्यापक चिकित्सा आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ चरक चिकित्सा का, उसमें कल्क देना है, पिचू देना है, पत्ते भोजन का प्रयोग करना है। तीसरा है रसायन वाजीकरण, मूत्र दोष प्रतिषेध वर्णितियों का दोषानुसार वर्णन करना है, मतलब रसायन देना है। वाजीकरण मतलब शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां देनी है। जब जैसे शुक्र बढ़ाने वाली वाजीकरण दवाइयां कैसी हैं, तो ये हो गया मुसली हो गया, शतावरी हो गया, विदारी हो गया, कपी कच्चू का बीज हो गया, कपी कच्चू, कवच बीज हो गया, शिलाजित हो गया, ये सब वाजीकरण दवाएं हैं। ये उधर देंगे तो ये आर्तव दृष्टि ठीक हो जाता है। फिर मूत्र दोष प्रतिषेध में, मूत्र दोष प्रतिषेध सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में जो चैप्टर है वो जब देंगे तो वहां पे अपान वायु ठीक हो जाएगा। अपान वायु ठीक होगा तो आर्तव भी ठीक हो जाएगा। फिर गुह्य प्रतिषेध अध्याय जो ये सुश्रुत संहिता में है, गुह्य प्रतिरोग मतलब जो गुप्त रोग में, जो गुप्त रोग की चिकित्सा का एक चैप्टर है, उसमें योनि रोग का जो चिकित्सा बताया है उसको दोषों के हिसाब से, अगर वातज रहेगा तो वातज चिकित्सा, पित्तज होगा तो पित्तज, कफ होगा तो कफ की चिकित्सा करना है। फिर फिफ्थ है कि पुष्पाध्याय और युषाध्याय में वर्णित औषधियों का प्रयोग। युषाध्याय और पुष्पाध्याय जो है वो काश्यप संहिता में बताया, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स का यूज किया है। और युषाध्याय है उसमें दाल, अलग अलग दाल का जो सूप रहता है उसको युषाध्याय बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे मेडिसिन है उसका यूज करना है। सिक्स्थ वन है जीवनीय गण की, तो जीवनीय गण जो है ना वह जीवनीय गण जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शीर काकुली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, इसमें जो मेडिसिन है उसका सिद्ध शीर का प्रयोग करना है। मतलब एक बार पाउडर लेना है और एक गिलास पानी लेना है, एक गिलास दूध लेना है, इसको बॉईल करना है और बॉईल करते करते केवल दूध बच जाएगा, वो सिद्ध शीर का यूज करना है। आचार्य काश्यप के अनुसार विरेचन चिकित्सा हितकारी होता है। अगर हमने विरेचन दिया तो रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होता है, तो पित्त निकल जाएगा, सारा पित्त निकल जाएगा तो रक्त साफ हो जाएगा। सामान्य चिकित्सा जो है, बाह्य प्रयोगात औषधियां जो है, जीवन त्यादी अनुवासन बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती, अब ये सारी बस्तियां जो है वो इसमें बताया, सिद्धि स्थान में बताया है। सहचरादि यापना बस्ती, सहचरादि यापना बस्ती यापना सिद्धि में बताया है, तो वो यापना बस्ती देने से मेंसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये जो बुक में लिखा है ये प्रैक्टिकली हमारे प्रैक्टिस में भी हम लोग करते हैं तो फायदा होता है। फिर आभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियां, तो अगर आर्तव दृष्टि है तो पुष्यानुक चूर्ण मार्केट में आता है। पुष्यानुक चूर्ण 1-1 चम्मच तंडुलोदक के साथ देना है। तंडुलोदक का मतलब है कि चावल 50 ग्राम चावल लेना है, 1 लीटर पानी में डाल के भिगो देना है और फिर वो चावल फूल जाएगा और वो पानी में मिश्री या चीनी डाल के पीना है। पुष्यानुक चूर्ण 1-1 चम्मच खा के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर है शत पुष्पाकल, शत पुष्पाकल मार्केट में मिलता है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, तो शतावरी कल्प दे सकते हैं, शतावरी घृत दे सकते हैं, योगराज गुगुल दे सकते हैं, पुग पाक मतलब सुपारी पाक जो होता है, सुपारी से बना हुआ, जैसे शतावरी कल्प होता है तो शतावरी कल्प में चीनी की चाशनी लेते हैं और उसमें शतावरी का चूर्ण डाल देते हैं भुन के, और वो फिर ऐसे भुनते रहते हैं तो पूरा पानी निकल जाता है चाशनी का और वो पाउडर ग्रैन्युल्स फॉर्म में होता है। उसी तरह से सुपारी पाक बनाते हैं तो सुपारी का वो ग्रैन्युल्स रहता है, उससे बहुत फायदा होता है। फिर शत पुष्पा तेल, बृहद शतावरी घृत, चंद्र प्रभावटी, ये सब दे सकते हैं। फिर दोषानुसार विशिष्ट चिकित्सा आर्तव दृष्टि में क्या देना है, तो वातज रहेगा तो वायु के अपोजिट क्या देना है, तो स्निग्ध, उष्ण, अम्ल, लवण। वायु में क्या रहता है, तत्व, रुक्ष, लघु, शीता, खर, सूक्ष्म, शलो, नीला। स्निग्धता मतलब रुक्ष के अपोजिट है, शीत के अपोजिट उष्ण है, मतलब ये अपोजिट वाले देंगे तो वो फायदा होगा। पित्तज में मधुर, शीत, कषाय रसात्मक, और कफ में कटु, रुक्ष, कषाय। अब इसमें दवाइयां क्या आती हैं, तो भारंगी, मधु, मद्र, दारू सिद्ध घृत का, काश्मती आदि घी आता है, या काश्मती और शुद्ध साह सिद्ध क्षीरपान, ये मेडिसिन मिलती है। दूसरा पित्तज में काकुल्य आदि जो है, विदारी मूल क्वाथ, उत्पल और पद्म क्वाथ, श्वेत चंदन क्वाथ एवं मधु, दव, दात की पुष्प, कल, घृत। और क्या दे सकते हैं, मधु, मधुरता, मृतिका कल, मृतिका मतलब मनुका, किशमिश जो रहता है उसके कल को घृत में पित्त शामक रहता है। कपज में श्री वृक्ष पत्र क्वाथ एवं मधु, कुटज, कटुका और अश्वगंधा क्वाथ, ये जितनी भी दवाएं हैं ना कटु, रुक्ष और कषाय रहती हैं, इसलिए वो दवाएं देनी है। और क्या दे सकते हैं, तो योनि का प्रक्षालन करना है, मतलब योनि को धोना है, वजाइना को रोज क्लीन करना है। तो वातज अगर आर्तव दृष्टि है तो सरल और मुद्ग पड़ने का कषाय देना है। पित्तज रहेगा तो गैरिक और अरिष्ट का क्वाथ देना है। कपज रहेगा तो बस एवं मेष के मूत्र, जो बकरी का मूत्र रहता है उससे, और लोध और का कषाय से धोना है। फिर उसके बाद में योनि में धारण करने के लिए पिच्चू रखना है। मैं आप लोगों को पिच्चू कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। क्या लेते हैं, कॉटन लेते हैं, गॉज पीस लेते हैं और कॉटन को वहां डाल के बांध देते हैं, और एक टिप ना बाहर रहता है गॉज पीस का,
और वो ना डिप करते हैं, जो भी गांठ में बना है कॉटन डाल के, और वो कॉटन को डिप करते हैं और योनि भाग में वजाइना के अंदर सर्विक्स तक डाल देते हैं। तो वायु में अगर वातज आर्तव दृष्टि है तो प्रियंग और तिल कल को मिक्स करके और वो डालना है। और पित्तज रहेगा तो चंदन और पयस्या कल्क, पयस्या मतलब विदारी से बनाया हुआ। और इस कपज रहेगा तो मदन फल का जो कल्क होता है वो। शोधन में निरु बस्ती देते हैं, वो ज्यादा फायदा होता है, वायु निकल जाता है पूरा। इसमें श्यामक और गवाक्षी शीर से विरेचन देते हैं, मतलब इसमें विरेचन चिकित्सा है पित्तज आर्तव दृष्टि में। कफज में मदन फल कषाय से वमन देते हैं। तो ये सब चिकित्सा करेंगे ना तो सब ठीक हो जाता है। और बताया कि कुणप ग्रंथि, क्षीण आर्तव दृष्टि, ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि, पुतिभुय निभ और मूत्र पुरुष गंधी आर्तव दृष्टि असाध्य होते हैं, परंतु उपद्रव के परिहारार्थ मतलब उपद्रव ठीक करने के लिए ये चिकित्सा बताइए। तो ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि है ना, जिसमें क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये मार्केट में सब मिलता है। पाठा का चूर्ण मिलता है, त्रिउष्ण मतलब सुंठ मरीच पिपली का चूर्ण मिलता है, और वृक्ष कषाय का काढ़ा बना के पीने के लिए देना है। कुणप गंधी मतलब डेड बॉडी की तरह स्मेल आ रहा होगा। पुति गंधी मतलब पस जैसा आ रहा होगा। मज्जा तुल्य आर्तव दृष्टि, जिस तरह से मज्जा निकल रहा है उस तरह का आर्तव दृष्टि होगा। तो भद्रशी या चंदन के क्वाथ का पान करना है। त्रिफला क्वाथ से योनि का प्रक्षालन करना है, योनि भाग धोना है। त्रिफला कल का योनि अभी क्यों होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है वहां पे, सर्विसाइटिस जो बोलते हैं, उसकी वजह से ऐसा गंदा स्मेल वाला आता है। तो वहां पे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए त्रिफला काढ़ा से धोना है। त्रिफला कल्क बना के चटनी जैसा बना के योनि में रखना है। क्षीण आर्तव दृष्टि में क्या करना है, या त्रिफला त्रिफला गुगुल दे सकते हैं, अमृता गुगुल, त्रिफला गुगुल, केशर गुगुल, उससे ये सब ठीक हो जाता है। क्षीण आर्तव दृष्टि है तो उसमें रक्तवर्धक चिकित्सा करना है। आर्तव क्षय के रक्तवर्धक चिकित्सा करेंगे, जैसे आपने दाढ़ी बले दे दिया, नवायस लो, ताप्यादि लो, मंडूर भस्म, ताप्यादि लो, चंद्रकला रस, दाढ़ीमा वले, द्राक्षा वले, ऐसी दवाइयां दी तो अपने आप रक्त बढ़ जाता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये सब से पत्ते हैं तो अन्नम शाली एवं मध्यम हिते मासम च पित्तलम, और शाली धान्य जो लाल चावल रहता है केरला साइड में वह देना है। और इसमें और क्या देना है, तो मध्य मास और पित्तकर आहार विहार ये सब बंद करना है। अभी ना नेक्स्ट टॉपिक है अस्त्रिकधर, लेकिन ना मैं कुछ मॉडर्न पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं आप लोग के पास कौन सी बुक है। हेलो, आप स्टूडेंट लोग, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग के पास मॉडर्न की कौन सी 13, 14, 15 ये चैप्टर हम पहले पूरा तीनों 3-4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अभी हम एबनॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं वो उस पे पूरा कंसंट्रेट करते हैं। पेज नंबर 178 निकालिए। बोलूंगा जब मैं थक जाऊंगा तो मैं बोलूंगा, पहले मैं पढ़ा देता हूँ फिर आप लोग भी रीडिंग करिएगा। ये चैप्टर नंबर 13 निकालिए, 13। इसमें पीडीएफ में 194 नंबर का है और चैप्टर नंबर 13 है। बुक का 178 पेज नंबर निकाल लिया क्या? यस सर। सब लोगों ने निकाल लिया? स्टार्ट करूं? शैल आई स्टार्ट? यस सर। शुभम जी मैं पढ़ाऊं? यस सर, कंटिन्यू सर। हाँ, तो ये चैप्टर नंबर 13 डिसमेनोरिया का मतलब क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूं कि इंग्लिश में करूं? आप लोग पहले ये बताइए। कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है कि हिंदी में? आप बताइए। सर इंग्लिश में। हाँ ठीक है। डिसमेनोरिया एंड अदर डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Definition of dysmenorrhea. Dysmenorrhea literally means painful menstruation. When there is severe pain during menstruation, then this is known as dysmenorrhea. But a more realistic and practical definition includes causes of painful menstruation of sufficient magnitude as to incapacitate day-to-day activities. Means when the day-to-day activities are hampered or imbalanced or disturbed, when day-to-day activities are disturbed, then and very much pain
pain is present in that. That condition is painful menstruation, and this is known as dysmenorrhea. Types primary and secondary. Primary dysmenorrhea spasmodic. In this, very much spasm are coming in all that area. The primary dysmenorrhea is one where there is no identifiable pelvic pathology. Means no pelvic pathology, no disease is present. Only due to physiological changes or psychosomatic factors are present, so painful menses are coming. The primary dysmenorrhea is one where there is no identifiable pelvic pathology. Incidence. The incidence of primary dysmenorrhea of sufficient magnitude with incapacitation is about 15 to 20%. Means 15 to 20% patients have primary type of dysmenorrhea. With the advent of oral contraceptives and non-steroidal anti-inflammatory drugs, there is marked relief of the symptom. When oral OC pills are given or non-steroidal anti-inflammatory drugs, means painkillers are given, means like for example Brufen, Pambiflame, Boveron, Diclofenac sodium. These medicines, painkillers are given, then pain subsides and marked relief of symptom is seen. Causes of pain. The mechanism of initiation of uterine pain in primary dysmenorrhea is difficult to establish. Means how we can know that there is pain and mechanism. We cannot. All the scientists are not understanding this. What is the mechanism? But the following are to be related. It may be related. All these causes may be related. Mostly confined to adolescents due to adolescent age. It may be spasm in the uterine muscles and all broad ligament and fallopian tube and all that. So it may be due to adolescent age. This primary dysmenorrhea is present. Second one is almost always confined to ovulatory cycles. Means in every cycle these painful menses are coming. The pain is usually cured following pregnancy and vaginal delivery. Means after pregnancy and vaginal delivery, pain automatically subsides. Means no need of treatment is required. Fourth one is the pain is related to dysrhythmic uterine contraction. Means in this uterine contractions, all the myometrium, all the muscles are dysrhythmically contracting in that. And second is uterine hypoxia. Means absence of oxygen is present. So pain may be due to that. Maybe that this mechanism may be due to this. First one is psychosomatic factors of tension and anxiety during adolescence. Means psychosomatic means tension may be present, anxiety may be present, lower the pain threshold. Second one is abnormal anatomical and functional aspect of myometrium. I told you yesterday that yes. सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताइए सर. अच्छा, आप ये बच्चे लोग जो बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ. अच्छा बच्चे सर, लोग आप लोगों को क्या है? हिंदी आप वो करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से हम लोगों को क्लियर होगा. हिंदी भी सभी बच्चे लिख लोगों रहे से हैं. पूछिए ना. सर नहीं सर, वो सब लिख रहे हैं मैसेज, आप उसमें देखिए आप. सर मेजॉरिटी सर हिंदी ही है हमारे पास. हाँ सर, क्योंकि अच्छा, तो वो साउथ इंडियन बच्चे बोलते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए. पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है. तो इसमें क्या होता है कि 15 to 20% जो पेशेंट होते हैं, जो भी लड़कियां होती हैं ना, उनको मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है. तो इसमें क्या करते हैं कि ओसी पिल्स जो रहते हैं, मालाडी वगैरह, वो जब देते हैं ना, तो ये पेनफुल जो रहता है वो सबसाइड हो जाता है. और हर बार कॉम्बीफ्लेम वगैरह खा के या पेन किलर खा के वो रिलीफ मिलता है टेम्पररी. इसका रियल कॉज पता नहीं है कि क्यों होता है. उसके बाद में क्या होता है कि ये सारे थियरीज लगाए गए हैं कि इनकी वजह से पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं, डिसमेनोरिया हो सकता है. तो ये सारे थियरी लगाए गए हैं कि एडोलसेंट जब वो युवावस्था में आती है लड़की प्यूबरिटी के बाद, तो उसकी वजह से वो नॉर्मल जो साइकिल है वो स्टार्ट जो हो रहा है, तो उसमें कुछ ना रास्ते में ब्लॉक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है. इसके वजह से पेन हो रहा है और स्पाज्म आता है. दूसरा होता है कि ओवुलेटरी साइकिल्स जब आता है, मतलब ओवुलेशन जब होने लगता है, आप लोगों ने ओवरीज का सब देखा होगा कि उसमें ग्राफिन फॉलिकल रहता है, इमैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रहता है, फिर वो जो ये रहता है फॉलिकल रप्चर होता है. रप्चर होने के बाद फिर वो ओवा से बाहर आके फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है. तो ये जो प्रोसेस है, इसमें ही क्या होता है कि पूरा फोर्स लगता है, मतलब
फोर्सफुली वो जब आने लगता है तो उस टाइम पे पेन बहुत ज्यादा होने लगता है। दूसरा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, डिसरिदमिक होता है। मतलब जो मायोमेट्रियम रहता है उसमें ना रिदम से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है, या ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन हाइपोक्सिया। फिर साइकोसोमेटिक फैक्टर, मतलब जब मेंसेस आने वाला होता है तो जो बच्चियां होती है, छोटी बच्चियां, वो लोग ना बहुत टेंशन में आ जाती है। अभी की नॉर्मल रूटीन था, वह रूटीन हमारा बिगड़ गया, हमको मेंसेस शुरू हो गए, और मेंसेस में कैसे गीला गीला आता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो और भी टेंशन आ जाता है, एंग्जाइटी मतलब घबराहट होती है, उसकी वजह से यह और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद में ये जो रहता है ना कि कभी कभी ये थ्रेशोल्ड जो रहता है वह इतना ज्यादा होता है कि वो लेट के रहती है, वो कुछ काम नहीं कर पाती, एक्टिविटी नहीं कर पाती है। फिर सेकंड वन है एबनॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ मायोमेट्रियम। अगर ना एनाटॉमिकली मायोमेट्रियम है उसमें एबनॉर्मलिटी रहे या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी रहे मायोमेट्रियम का, मैंने कल बताया था कि उसमें 3 लेयर्स रहते हैं, मायोमेट्रियम, आउटर लेयर जो रहता है यूट्रस का, मिडल लेयर जो रहता है वो मायोमेट्रियम रहता है, और इंटरनल रहता है एंडोमेट्रियम रहता है। तो मायोमेट्रियम मतलब मसल फाइबर्स रहते हैं। अगर उसमें एनाटॉमिकल कोई एबनॉर्मलिटी रहे या फंक्शनल उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कि मतलब जो मेंसेस का ब्लड है उसको हमें पुश करके बाहर निकालना है, वह अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है। इसी को बताया कि यूट्राइन मायोमेट्रियल हाइपर एक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन केसेस विद प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मतलब उसमें यूट्राइन मायोमेट्रियम है ना, उसमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो वहां से पेन स्टार्ट होगा, वो पेन स्टार्ट होके लोअर बैक में, फिर थाइज मसल्स में और लोअर एब्डोमेन में, वहां वो रेडिएट होगा पेन, और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है जो मेंसेस का टाइम होता है, और स्टार्टिंग में 3 दिन तक तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। कुछ लोगों को प्री मेंसेस का पेन होने लगता है, मतलब मेंसेस आने वाले हैं उसके पहले ही हैवीनेस लगने लगेगा, ब्रेस्ट में बहुत ये हैवी लगेगा, फिर वहां पेन शुरू हो जाएगा, लोअर बैक में पेन शुरू हो जाएगा, फिर पेन के बाद उसका मेंसेस आने लगता है। द आउटर मायोमेट्रियम एंड द सब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम आर फाउंड टू बी डिफरेंट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मतलब जो मायोमेट्रियम के 2 लेयर होते हैं, एक आउटर मायोमेट्रियम होता है और एक सब एंडोमेट्रियम। मतलब जो सब एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है उसके साथ जो कनेक्टेड रहता है उसको सब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन भी डिफरेंट होता है। द सब एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम इज नोन एज जंक्शनल जोन JZ. This is marked hyperperistaltic of that zone in a woman with endometriosis and adenomyosis. कुछ डिजीजेस होते हैं एंडोमेट्रियोसिस एंड एडेनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन रहता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है एंडोमेट्रियम का लेयर में, और वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो इंटरनली तो एंडोमेट्रियम को ये करेगा, इन्फ्लेम्ड करेगा ही, वो ना बाहर भी आ जाता है, पूरा एंडोमेट्रियम के ऊपर कवरिंग कर देता है, और उसमें क्या सिम्टम रहते हैं, तो हैवी मेंसेस होते हैं और बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हैं और बहुत दिन तक बहुत ज्यादा पेन होता है इसको, और हाइपर पेरिस्टाल्सिस, ये मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा। और दूसरा है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस में क्या होता है कि जिस तरह से अर्श होता है, हमारा पाइल्स का अर्श का अंकुर होता है, उस पे प्रोजेक्शन निकल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे अर्श की तरह अंदर ही अंदर एंडोमायोसिस में लेयर्स आ जाते हैं, लेयर्स नहीं आते, मतलब ऐसे अंकुर, जिस तरह से चने का आपने अंकुर लगाया या कोई दाल का स्प्राउटेड जो चीज रहता है, उस तरह से कुछ ना एबनॉर्मल चीज का ग्रोथ हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है उसमें भी हैवी मेंसेस आते हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होता है हाइपर पेरिस्टाल्सिस, मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, मेंसेस भी आता है। तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस का इलाज नहीं है एलोपैथी में, एडेनोमायोसिस का भी इलाज नहीं है, आयुर्वेद में है। ये सिम्टम होते हैं। इन वुमेन विद डिस्मेनोरिया सिग्निफिकेंट चेंजेस इन JZ आर सीन। जो जंक्शनल जोन है उसमें जिनको बहुत डिस्मेनोरिया होता है उसमें ये बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। इरेगुलर थिकनिंग एंड हाइपरप्लेशिया स्मूथ मसल, मतलब उसमें इरेगुलर थिकनिंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एंडोमेट्रियम में हर महीने में कुछ ये थिकनिंग होने लगती है, लेकिन इसमें क्या होता है डिस्मेनोरिया में इरेगुलर होता है, एक पैटर्न में रेगुलर नहीं होता है। और हाइपरप्लेशिया स्मूथ मसल जो रहते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट हाइपरप्लेशिया मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है जो एबनॉर्मल होता है।
HFT मतलब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो रहता है. दिस इज नोन एज जंक्शनल जोन हाइपरप्लेशिया. तो ये डिजीज होती है जंक्शनल जोन हाइपरप्लेशिया. फिर है डिसपेरिस्टाल्सिस एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ यूट्राइन. These that are the important mechanism of primary dysmenorrhea. मतलब डिसपेरिस्टाल्सिस मतलब abnormal contraction, relaxation, ऐसा irrhythmic जो होता है, या हाइपर एक्टिविटी ऑफ यूट्राइन जो जंक्शनल जोन रहते हैं. जंक्शनल जोन कौन से होते हैं? सब एंडोमेट्रियल लेयर होते हैं, उसमें मतलब अनरिदमिक होता है, इसकी वजह से ये पेन होने लगता है. थर्ड पॉइंट है कि इम्बैलेंस इन द ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल ऑफ यूट्राइन मसल्स. मतलब जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका ओवर एक्टिविटी होना. देयर इज ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स. मतलब ब्रेन से सिग्नल आ रहा है और सिंपैथेटिक नर्व्स जो रहते हैं, जो फाइट फ्लाइट ऐसा जो बताया जाता है ना, वो उसका ओवर एक्टिविटी होने लगता है, उससे पेन बहुत ज्यादा होता है. एंड हाइपरटोनिसिटी ऑफ सर्कुलर फाइबर्स ऑफ इस्थमस एंड इंटरनल लॉस. मैंने जो एनाटॉमी में आप लोगों को पढ़ाया था कि इंटरनल लॉस होता है, इस्थमस होता है, वहां पे ना बहुत ज्यादा ना सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, उसमें भी हाइपरटोनिसिटी होती है. मतलब वहां पे भी रिदम बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है. द रिलीफ ऑफ पेन फॉलिंग, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स और फॉलिंग वजाइनल डिलीवरी may be explained by the damage of adrogenic neurons which fail to regenerate. अब क्या होता है कि जब वजाइनल डिलीवरी हो जाती है, वजाइना जब ओपन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, या सर्विक्स भी ओपन हो जाता है, तो वहां पे जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स जो रहते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी की तरह पेन हो रहा है, तो वह ना डैमेज हो जाते हैं वहां पर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपने आप पेन ऐसा फील नहीं होता. तो ये वजाइनल डिलीवरी के बाद ऐसा डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आपको जो ये पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, वो वजाइनल डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाएगा. वो ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकल है और ठीक हो जाएगा. उसका परमानेंट इलाज है कि प्रेगनेंसी होना और डिलीवरी होना. उसके बाद में है फोर्थ पॉइंट, रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहते हैं हार्मोन, उनका एक्टिविटी क्या रहता है कि वही पेन ज्यादा मतलब स्टिमुलेट करते हैं. तो इसमें ये बता रहे हैं कि इन ओव्यूलेटरी साइकिल्स अंडर द एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम. मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है, जब ओवरीज प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर रहा है, तो जो ये हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उनका सिंथेसिस होता है PGF2 अल्फा PGE2. इसका सिंथेसिस होता है और वह सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम से सीक्रेट होते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिलीज्ड विद मैक्सिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. जब शेडिंग होता है एंडोमेट्रियम का मेंसेस के टाइम पे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगते हैं. PGF2 अल्फा इज स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर. जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब वहां पे जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं उनका कंस्ट्रिक्शन करता है. विच कॉजेज इश्चीमिया मतलब वो क्या करता है कि एक तरह से वहां पे एक अलग तरह का रिदम दे देता है. वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और जैसे हार्ट में एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है कि वहां पे टेम्पररी सूख गया है. जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक बलून लिया, बलून में बड़ा सा बलून को फुला दिया, और आपने क्या किया कि वहां पे कुछ भाग को ना ऐसे गांठ मार दिया. गांठ मारने के बाद क्या होगा कि बलून जो है उसको आप प्रेस करेंगे, अगर उसको रिदम से प्रेस कर रहे हैं, वो जो गांठ है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और वहां पे जो इस्चेमिक चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने गांठ बताया, उस तरह से एक भाग में ना सूख जाता है. सूखने की वजह से क्या होता है कि मायोमेट्रियम या हार्ट में वहां पे रिदम अच्छे से नहीं आ पाता. तो जब रिदम इम्बैलेंस हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ऐसा ये सारा पैटर्न हो जाएगा. मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? yes, समझ आ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो यस सर. बच्चे लोग, हाँ. तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का वहाँ पे रोल रहता है, वो वही पेन स्टार्ट करता है, वही मतलब बॉडी में ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन की वजह से पेन बढ़ जाता है. आइदर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन और इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द मायोमेट्रियम टू द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, देयर इज इंक्रीज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. अब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है. जैसे मुझे ना कोई फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसको ब्लॉक करता हूँ. 1 मिनट बस.
इनका सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है तो ना मायोमेट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है और उसमें विद और विदाउट दिस एरिथमिया मतलब उसका जो रिदम होता है वो या तो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा. द पॉसिबल cause of pain owing to that change is shown systematically below. अभी इसमें एक और थ्योरी बताया है कि रोल ऑफ वेसोप्रेसिन एक हार्मोन रहता है, उसका भी अगर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो पेन ज्यादा हो रहा है. तो ये एक थ्योरी है. तो दिस इज इंक्रीज वेसोप्रेसिन रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन विद प्राइमरी डिस्मेनोरिया. मतलब जब वेसोप्रेसिन का ज्यादा रिलीज हो रहा है तब भी जो पेन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है. दिस एक्सप्लेन्स द परसिस्टेंस ऑफ पेन इन केसेस इवन ट्रीटेड विद एंटीप्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स. जब एंटीप्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स दिया जाता है, आप लोगों ने फार्मेक में पढ़ा होगा कि पेन सबसाइड करने के लिए एंटीप्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स दिया जाता है. तो जब ये दिया जाता है तो ये पेन जो होता है वो कम हो जाता है. तो इसलिए ऐसा कंक्लूजन निकाला जाता है कि वेसोप्रेसिन का भी वहां रोल है. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड. मतलब अभी वेसोप्रेसिन का फंक्शन कैसे होता है ये अभी रिसर्च का टॉपिक है. वेसोप्रेसिन इंक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस. ये क्या करता है कि वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो पेन का जो हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन उसका सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है. एंड इट आल्सो इंक्रीजेस मायोमेट्रियल एक्टिविटी डायरेक्टली. वेसोप्रेसिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिंथेसिस करता है और मायोमेट्रियम का जो एक्टिविटी है मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह उसको भी वो बहुत एनहांस कर देता है. इट कॉजेस यूट्राइन हाइपर एक्टिविटी एंड डिसरिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. मतलब हाइपर एक्टिविटी हो जाती है यूट्रस में और डिसरिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं. फिर क्या होता है, इश्चीमिया एंड हाइपोक्सिया. इश्चीमिया मतलब कोई भाग ना यूट्रस का कोई भाग ड्राई हो जाता है और वहां पे हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसकी वजह से पेन होने लगता है. तो ये काम सारा होने लगता है. फिर है एंडोथेलिन. एंडोथेलिन कॉजेस मायोमेट्रियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये भी एक हार्मोन रहता है. इसका भी एक थ्योरी बनाया है कि मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है स्पेशली इन एंडोमेट्रियम जंक्शन. एंडोथेलिन इन एंडोमेट्रियम कैन इंड्यूस PFZ20. मतलब एक तरह का अलग तरह का यह मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का एक टाइप है 2 अल्फा. यह सीक्रेट करने लगता है. लोकल मायोमेट्रियल इश्चीमिया कॉज्ड बाय एंडोथेलिन एंड PGF2 अल्फा एग्रेवेट यूट्राइन पेरिस्टाल्टिस एंड हाइपर एक्टिविटी. मतलब उसमें ना रिदम जो रहता है वो डिस्टर्ब टाइप का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और हाइपर एक्टिविटी होने लगता है. फिर 7 पॉइंट है कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. PAF is also associated with the etiology of dysmenorrhea as its concentration is found high. Leukotrienes and PAF are vasoconstrictors and stimulate myometrial contraction. मतलब PAF का भी वहाँ रोल है ये प्रॉब्लम शुरू होने के लिए. अभी ऐसा डायग्राम बनाएं. पॉसिबल कॉजेज ऑफ पेन. तो प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो वो क्या करता है PGF2 उसका सिंथेसिस करेगा रिलीज करेगा और उससे क्या होगा कि एंडोथेलिन ल्यूकोट्राइन PAFS इसका सिक्रीशन होगा और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा. डिस्मेनोरिया होगा प्लस माइनस. और दूसरा इससे होगा PGF2 से प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होगा रिड्यूस ब्लड फ्लो. मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो यूट्रस का कुछ भाग ड्राई हो जाएगा तो उसकी वजह से मायोमेट्रियल एंजाइना होगा और पेन होने लगेगा. पेशेंट प्रोफाइल. प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज प्रीडोमिनेटली कन्फाइंड टू एडोलसेंट गर्ल्स. मतलब ये जो रहता है ये एडोलसेंट गर्ल्स को होता है और इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं रहती है. ये ना मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है या प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन की वजह से हो रहा है. इसमें कोई बीमारी नहीं होती है, ये नेचुरल होता है. इट यूजुअली अपीयर्स विद इन 2 years ऑफ मेनोपॉज. मतलब जब मेंसेस शुरू हुए फर्स्ट मेंसेस से 2 साल तक ये नॉर्मल रहता ही है. द मदर और हर सिस्टर में भी डिस्मेनोरिया मतलब माँ को भी होगा उसकी सिस्टर को भी ये होगा और इस बेटी को भी हुआ रहता है. इट इज मोर कॉमन अमॉन्गेस्ट गर्ल्स फ्रॉम एफ्लुएंट सोसाइटी. मतलब जो बहुत रिच वगैरह रहते हैं जिनका एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता है उन लोगों को ये डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है. जो लोग फैट होते हैं बहुत रिच होते हैं उन लोगों को ये होता है. जो लोग मेहनत वगैरह करते हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास उन लोगों को ये नहीं होता है. फिर क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो क्या होता है, द पेन बिगिंस a few hours before or just with the onset of menstruation. जब ये मेंस्ट्रुएशन होने लगता है तो उसके पहले या जैसे ही मेंसेस आ रहे हैं तब ना बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है.
The severity of pain usually lasts for few hours, may extend to 24 hours. मतलब 24 घंटे हो जाएगा, but seldom persist beyond 48 hours. मतलब कंटिन्यूटी में, seldom का मतलब है कंटिन्यूटी में बार बार, या 48 hours तक, मतलब 2 दिन तक भी पेन रह सकता है. The patient is spasmodic, मतलब पेन जो रहता है ना स्पाजम में आता है, मतलब मसल्स पे मसल्स ऐसे स्पाजम का मतलब है कि नस पे नस चढ़ती है, इस तरह का पेन होता है और स्पाजम होता है, ट्विस्टिंग होता है उसमें. एंड कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन, मतलब स्पाज्मोटिक होता है और लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा होने लगता है जहाँ पर यूट्रस रहता है. मे रेडिएट टू द बैक, या बैक में रेडिएट करता है पेन. एंड मिडल एस्पेक्ट ऑफ थाइज, थाइज जो है अपना जंघा भाग है वहां पे बहुत ज्यादा ये फैल जाता है पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है. और क्या होता है, सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट लाइक नोशिया, मतलब जी मिचलाता है, ऐसे उल्टी आने जैसा मन होता है. फिर वॉमिटिंग भी होती है, फटीग ऐसे थकावट होती है, डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, हेडेक होता है, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट का जो रिदम है वो ज्यादा बढ़ जाता है. मे बी एसोसिएटेड, इट मे बी अकम्पनीड बाय वैसोमोटर चेंजेस कॉजिंग पेलर. मतलब इसमें क्या होता है कि वैसोमोटर चेंजेस होते हैं, मतलब ब्लड का ब्लड वाहिनियां जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं उसमें कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसलिए ना चेहरा एकदम मलिन हो जाता है. मतलब पेलार मतलब बहुत ज्यादा ऐसे निस्तेज हो जाता है. कोल्ड स्वेट्स मतलब उसमें ठंडी लगती है बहुत ज्यादा, ऐसे पेशेंट बोलती है कि हमें बहुत ठंडी लग रही है. फिर ओकेजनल फेंटिंग मतलब चक्कर भी आने लगता है. रेयरली सिनकोप एंड कोलैप्स, मतलब कभी भी बेहोश हो जाती है, उसमें ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई नहीं होता. इन सीवियर केसेस में भी एसोसिएटेड. एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन डज नॉट रिवील एनी एबनॉर्मल फैंटम्स. अगर आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया या पेल्विक एग्जामिनेशन किया, ऐसे तो करना नहीं है क्योंकि हाइमेन इंटैक्ट होता है, तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना. बस ऐसे ही आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कोई भी चीज एबनॉर्मल नहीं दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा कि वो नॉर्मल है. और ये प्राइमरी डिस्फिनोरिया है, मतलब इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, कोई डिजीज की वजह से नहीं होता, ये होता ही है. ट्रीटमेंट क्या करना है, जनरल मेजर्स इंक्लूड इंप्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ एंड सिंपल साइकोथेरेपी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एश्योरेंस. मतलब उसको ना काउंसलिंग करना है कि बेटा आपको होगा, ये नॉर्मल है, आप पेन किलर खा लीजिए और घबराइए मत, उसको एंग्जाइटी से निकालना है, एश्योरेंस देना है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. तो वो ना अपने आप जब उसका सुनने से उसको एश्योरेंस मिलेगा तो अपने आप उसको अच्छा लगेगा. यूजुअल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स आर टू बी कंटिन्यूड, मतलब अगर वो स्पोर्ट्स में जा रही है, खेलना कूदना है, मेंसेस के टाइम पे पेन हो रहा है तो उसको पेन किलर देके आप बोलिए कि खेल सकते हो आप. ड्यूरिंग मेंसेस बॉयल शुड बी केप्ट एम्प्टी, मतलब जब मेंसेस होता है ना तो उसका पेट साफ होना जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए. अगर कॉन्स्टिपेशन रहा तो पेन ज्यादा बढ़ेगा. माइल्ड एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, तो आप प्रोसिन दे दीजिए, कॉम्बिफ्लेम दे दीजिए, पैरासिटामोल दे दीजिए, ब्रूफेन दे दीजिए, डाइक्लोफेनेक सोडियम दे दीजिए, ऐसे कुछ पेन किलर देना है. और एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स ऐसे कुछ दे देंगे हम लोग, जैसे साइक्लोपाम करके एक टैबलेट आता है, वो मसल का स्पाजम को कंट्रोल करता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट साइक्लोपाम का दवाई देते हैं. वो जब देते हैं तो अपने आप मेंसेस का पेन निकल जाता है, कुछ तकलीफ नहीं होता. हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स सच एज पिथिडीन और मॉर्फिन मस्ट नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो ये आदत डालने वाले जो जैसे आजकल ये आ रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस लेते हैं मॉर्फिन, गांजा वगैरह जो ले रहे हैं, मारिजुआना वगैरह, तो जो अफीम से बनाई हुई दवाइयां हैं वो सब नहीं देना है, नहीं तो क्या होता है कि आदत पड़ जाती है. अगर वो आदत पड़ गई तो उसके बिना रह ही नहीं जाएगा, हर समय उसमें ही रहने का मन करेगा. विद दिस सिंपल मेजर्स द पेन इज रिलीव्ड इन मेजॉरिटी. और फिर है ड्रग्स यूज्ड आर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज इनहिबिटर्स, मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट नहीं करने वाले इनहिबिटर्स रहते हैं. टेबल 13.1 में दिया है, नीचे आप देखिए टेबल, उसमें दिया है कॉमनली यूज्ड एनएसएआई मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. ये क्या है, तो फिनामेंट ग्रुप में मेफेनिमिक एसिड 250 टू 500 mg का टैबलेट आता है 8 आवर्ली, मतलब 8-8 घंटे में उसका काम होता है, 8-8 घंटे के बाद देना है. फ्लूफेनेमिक एसिड 100 टू 200 mg 8 आवर्ली, ये दिया जाता है. फिर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आइबोप्रोफेन, मतलब ब्रूफेन जो मैंने बताया 400 mg 8 आवर्ली देना है, या नेप्रोसेन 250 mg 6 आवर्ली देना है, या इंडोमेथासिन 25 mg 8 आवर्ली देना है. इससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है. अभी इसी को ऊपर देखेंगे तो क्या दिया है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेस इनहिबिटर PSIs. These drugs not only reduce the prostaglandin synthesis by inhibition of cyclooxygenase
oxygenase enzyme, but also have a direct analgesic effect. Intrauterine pressure is reduced significantly. Any of the preparation listed in the table can be used orally for 2 to 3 days, starting with the onset of period. मतलब हम मेंसेस आने वाले हैं उसके 2-3 दिन पहले ही यह जो है PSI ड्रग्स दे दीजिए आप लोग, तो पेन कम हो जाएगा. The drug should be continued for 3 to 6 cycles. ये जब देंगे तो पेन फिर अपने आप कम हो जाएगा और फिर ज्यादा पेन नहीं होगा. अभी मैं ब्रेक करूं क्या, मतलब लेक्चर को स्टॉप करूं. प्राइमरी डिस्मेनोरिया मतलब जो लड़कियों को ना पेन हो रहा है तो उसमें क्या क्या देना है, तो पहले एश्योरेंस देना है, मतलब उनको आश्वासन देना है कि बेटा आप चिंता मत करो, आपका पेन कम हो जाएगा, ये नॉर्मल है, ये सबको होता है, ऐसे एश्योरेंस देना है. सेकंड है एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर देना है. दूसरा एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स जो मसल्स पे काम करता है और स्पाज्म को ठीक करता है, उसको एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स बोलते हैं. फिर तीसरा है टू एम्प्टी द बाउल मतलब पेट साफ होने वाली दवाइयां देनी है, तो एलोपैथी में डाइक्लोफेनेक सोडियम देते हैं, सॉरी ये देते हैं, टल्कोलेक्स देते हैं, या अलग अलग ट्रिमेफिन देते हैं, वो लिक्विड देते हैं जिससे पेट साफ होता है. आयुर्वेद में हम लोग एरेंटल देते हैं या गंधवरेत देते हैं या त्रिफला चूर्ण देते हैं, मतलब पेट साफ होना चाहिए उसका. फिर है एंकरेज नॉर्मल एक्टिविटीज, उसको बोलना चाहिए कि आप खेलो कूदो काम करो सब कुछ करो, ऐसा नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए उसको बोलना चाहिए. ऐसा नहीं कि रूम बंद करके एक बैठी है और उसको मेंसेस आ रहे हैं, पेन हो रहा है और वो लेटी है और तड़प रही है, ऐसा नहीं है. फिर है अगर ये सब फेल हो गया, हम सबने साइकोलॉजिकल इफेक्ट सब किया और ऐसे से किया, अगर ये सब से नहीं हो रहा है तो क्या करना है, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप सबको दे सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रहता है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि जो छोटी लड़कियां हैं उनको कितने दिन तक देना है, कंटिन्यू नहीं देना तो बाद में उनको प्रॉब्लम होगा. और पेशेंट वांटिंग प्रेगनेंसी, जिनको प्रेगनेंसी है उनको हम दे सकते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर जो रहते हैं PSI जो रहते हैं 3 to 6 साइकिल्स तक देना चाहिए, तो 3 से 6 महीना तक हमें देना चाहिए. नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आइदर, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी रहते हैं, वो भी हम 3 से 6 साइकिल तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए. और उसके ऊपर क्या बता है, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो अभी सारे स्टेरॉइड और हार्मोन से रहते हैं, मतलब स्टेरॉइड नहीं सॉरी उसमें हार्मोन से रहते हैं, एस्ट्रोजन का ही सब रहता है, तो वो सब दे सकते हैं. वांटिंग कॉन्ट्रासेप्शन, जिनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए कि गर्भ निरोधक, मतलब उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और उनको पेन हो रहा है तो उनको हम दे सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ PSI, जिनको ना PSI का जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो आपके ड्रग टुडे जो बुक आता है उसमें दिया होगा, तो उसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें आप ये दे सकते कॉन्ट्रासेप्टिव OC पिल्स दे सकते हैं जिसमें PSI का कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कौन कौन से कंडीशन में नहीं देना है, कोई कोई से बीमारियां होती है उसमें नहीं देना होता है. और ये सब भी फेल हो गया तो क्या करना है, USG करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना है या लेप्रोस्कोपी करना है टू एक्सक्लूड पेल्विक पैथोलॉजी. मतलब हमें फिर सेकेंडरी एमेनोरिया में वो चला जाएगा, तो हमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखना है, और उसमें एंडोमेट्रोसिस वगैरह जो है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वगैरह है क्या वो देखना है. उसके बाद भी अगर फेल हो गया तो जो सर्विक्स का एरिया होता है कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ रहता है, तो उसको डायलेटर से हमें डायलेट करना होता है सर्विक्स को. फिर लेप्रोस्कोपी करके चेक करना है, लेप्रोस्कोप डाल के, तो क्या होता है यूट्राइन नर्व एबलेशन, मतलब यूट्राइन नर्व जो जा रही है और वो बहुत ज्यादा हाइपर स्टिमुलेट हो रही है, तो एबलेशन मतलब उसको कट कर देना है, उससे ना पेन नहीं होगा. दूसरा प्री सैक्रल नेरेक्टोमी, मतलब जो सैक्रल जगह से जो जा रहा है स्पाइनल नर्व जा रहा है जिसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा लोअर बैक में हो रहा है और यूट्रस में स्पाज्म आ रहा है, वो नर्व को कट कर देना है इसके. और ये रेयरली ही किया जाता है, ये कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, फिर वो प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो पता ही नहीं चलेगा, ये रेयरली ही किया जाता है और हमेशा नहीं किया जाता. फिर दूसरा है COX-1 एंड COX-2, ये आप लोगों को फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा. सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम COX-2 may have similar analgesic efficacy but fewer side effects, मतलब एनाल्जेसिक एफिकेसी इनका रहता है. COX-1 ड्रग्स एंड COX-2 ड्रग्स वो देना चाहिए. दूसरा है ट्रांसडर्मल यूज ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट इज यूजुअल आल्सो यूज्ड करंटली, मतलब ये जो है वो इंजेक्शन हम देते हैं उससे भी मसल रिलैक्स हो जाते हैं और फायदा होता है. द सुटेबल कॉजेज आर comparatively young age and having contraindication to pill. The contraindication of its use allergy to aspirin,
अल्सरेशन हो रहा है, मतलब पेट में अल्सर फॉर्मेशन है एंड हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, तो इसके वजह से ये सब नहीं दिया जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रहते हैं, द सुटेबल कैंडिडेट्स आर पेशेंट्स वांटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन विद हैवी पीरियड्स, जिसको बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं उनको ओसी पिल दे सकते हैं। जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए कि हमें बच्चा ना हो और शादीशुदा लड़कियां हैं और 1-2 साल के लिए उनको बच्चा नहीं चाहिए, उनको ओसी पिल देते हैं। तीसरा है अनरेस्पॉन्सिव और कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स, जिनको एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग से साइड इफेक्ट हो रहा है या उससे फायदा नहीं हो रहा है, उनको ओसी पिल्स देना है। द पिल शुड बी यूज्ड फॉर 3 to 6 साइकिल्स। फिर है डाइड्रोगेस्ट्रॉन, ये मेडिसिन होता है, इट डज नॉट इनहिबिट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को स्टॉप नहीं करेगा बट प्रोबेबली इंटरफेयर्स विद ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस। The drug should be taken from day 5 of a cycle to 20 days. It should be continued for 3 to 6 cycles. If the above protocol fails, laparoscopy is indicated. The laparoscope डाल के और चेक करना है to find out any pelvic pathology to account for pain. The important one being endometriosis. Endometriosis मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन होता है और वो पूरा यूट्रस के ऊपर ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब सबको कवर कर देता है। ये हमें देखना है कि कोई पैथोलॉजी, कोई बीमारी तो नहीं है। फिर सर्जरी करना है तो ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन TNS हैज बीन यूज्ड टू रिलीव डिस्मेनोरिया। ये एक नर्व होता है, उसमें ना इलेक्ट्रिक का ऐसे स्टिमुलेशन देते हैं तो उससे ना बहुत फायदा होता है। रिजल्ट्स आर नॉट बेटर देन दैट ऑफ एनाल्जेसिक। ये सर्जरी करने से उतना फायदा नहीं होता, एनाल्जेसिक से जितना फायदा होता है उतना नहीं होता। दूसरा है सर्जिकल प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी यूटेराइन नर्व एब्लेशन, मतलब नर्व को कट कर देना है तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया has been not found beneficial, उसका भी इतना beneficial नहीं रहता है। laparoscopic pre-sacral neurectomy is done to cut down the sensory pathways via T11, जो T11 T12 रहता है यूट्रस से, उसको ना कट कर देते हैं। It is not helpful for adnexal pain T9 T10 as it is carried out by thoracic autonomic nerves along the ovarian nodules. As such, its role is through dysmenorrhea is questionable. फिर है dilatation of cervical canal, is done under anesthesia. Anesthesia देने के बाद slow dilatation of cervix करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि constriction बहुत ज्यादा होता है cervix में, उसकी वजह से पेन बहुत होता है, तो हमें dilate करना है to relieve pain by damaging the sensory nerve ending। हमें ना dilate करना है, जो sensory nerve ending है उसको डैमेज हो जाएगा वो फिर dilate करने से। It is not commonly done. Late sequel में भी cervical incompetence, मतलब इसका क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन होता है। सीक्वल मतलब परमानेंट डैमेज होना, ऐसे बीमारी होती है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्विस जो होता है ना फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ ही नहीं पाता, वो ना डायलेट ही रहता है, तो ऐसा करना गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ नहीं करते। ये मतलब ये भी मेथड है लेकिन ये करना अलाउ नहीं करते। फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें बहुत सारे देखिए, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में सर्वाइकल स्टेनोसिस है, क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, ये बहुत सारे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा कल। ठीक है, अब आप लोग केस डिस्कशन करिए। हम लोगों ने डिस्मेनोरिया पढ़ लिया, थोड़ा आर्तवदुष्टि पढ़ लिया। बच्चे लोग हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप लोग कुछ केसेस बताइए, कुछ पेशेंट आ रहे हैं तो हम केसेस सुनते हैं, पढ़ते हैं। कि आज छुट्टी लेना है, डिस्कशन नहीं करना, हम लोग कल करेंगे। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है वो आप पढ़ लीजिए और फिर हम कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है? पेनफुल मेंसेस रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद की सिंपल दवाइयां देते हैं, जैसे महायुगराज गुगुल देते हैं और ये कुमारी असव देते हैं, अशोका रिश देते हैं, तो उससे पेन कम हो जाता है। और ये जो है कौन सा कल्प, सुंदरी कल्प करके एक बैद्यनाथ का दवाई आता है, उससे भी बहुत ज्यादा पेन कम हो जाता है, लड़कियों को दिया जाता है। और हेम पुष्पा सिरप का एडवर्टाइज आता है, उसमें जो भी कंटेंट्स है वो जब देते हैं तो मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं और पेन कम हो जाता है। तो ये आयुर्वेद में तो सिंपल मतलब सेफ मेडिसिन है। एलोपैथी में ये देते हैं कॉम्बीफ्लेम, पेन किलर दवाइयां देते हैं। और क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो वहाँ पे नर्व एंडिंग रहता है वो डैमेज होता है, एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग डैमेज होता है वजाइना के एरिया में, तो वो पेन अपने आप सबसाइड होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी पेन नहीं होता, प्रेगनेंसी के पहले तक पेन हो सकता है।
और अगर चिकित्सा करना है तो हम लोग अनुवासन बस्ती दे देते हैं, 2-3 दिन तक अनुवासन बस्ती दे देंगे तो ठीक हो जाता है। ऐसे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जो सेकेंडरी वाला होता है वह बहुत ज्यादा वास्ट है। वो आप लोग को मैं 2-3 बार पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, तब याद होगा। उसमें क्या रहता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन रहती है, मतलब बहुत सारे डिजीज रहते हैं और उसकी वजह से बहुत पेनफुल मेंसेस होते हैं। जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, फिर फाइब्राइड हो गया, सिस्ट हो गया, पीसीओडी, किसी ना किसी कोई ना कोई बीमारी रहती है, वहां पे कुछ पैथोलॉजी रहती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेनफुल मेंसेस होता है। उसका हमें पहले समझना है कि पैथोलॉजी क्या है, क्यों हुआ है, एलोपैथी के हिसाब से, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। वो हम कल पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो सर उसको दिया बोला था मैंने वो अशोका लेने के लिए, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। ठीक है, उनसे मेरी बात करवा दीजिए तो मैं दवाई चेंज करके बताऊंगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या होता है, मुझे हम सबको सिम्टम बताइए कि क्या होता है, पेन कैसा होता है। सर बस उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और सर ये अमाउंट किस अमाउंट में लेनी चाहिए, कुमारिया सब और अशोका रिस्ट? ये तो 50 ml तक लेना चाहिए, 50 ml। मेन कुमारी ऐसा, और ये सबसे अच्छा है कि 10 मिलारिस्ट लिया जाए। महायोगराज गुगुल 2-2 गोली दिन में 3 बार और 10 मिलारिस्ट का अनुपान देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ना पेशेंट को क्या करना है कि साइकोलॉजिकल बहुत सारा सपोर्ट करना है। या जो हेम पुष्पा सिरप आता है, वो जो रवीना टंडन का आता है हेम पुष्पा सिरप, उसमें टैबलेट भी होता है और कोई सिरप भी होता है, वो 2-2 चम्मच पी लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। सर हेलो। हाँ जी, हेलो जी बताइए। सर, ये प्रॉब्लम मुझे थी पहले, पर शादी के बाद हाँ। ये खत्म हो गई, डिस्मेनोरिया वाली तो क्या प्रॉब्लम। तो होता सर था, इसमें क्या होता था तो सर बच्चों को मेनली बताइए इसमें थोड़ा। क्या, हाँ सर, तो इसमें क्या होता था, जो 2 डेज मेंसेस के 2 डेज होते थे उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता था, और बैक एक और पेन वो बहुत ज़्यादा होता था, और ये सबसाइड होने लगता था 3rd डेज से, मतलब तो धीरे धीरे कम होता था फिर, है ना। अच्छा। और ये हाँ। 2 दिन बहुत ज्यादा होता था। और और सर मेंसेस के पहले भी होता था क्या आपको? ना, नहीं सर, मेंसेस के पहले नहीं होता था वो सिम्टम, मतलब जब मेंसेस आने वाले होते थे तब होता था, ऐसे नहीं कि मतलब बीच में नहीं होता था। और पेन पेन कहाँ होता था, मतलब आप डॉक्टर हैं, बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो आप ये बताइए कि सर कहाँ, लोअर एब्डोमेन में, कहाँ कहाँ? सर लोअर एब्डोमिन में, मेनली लोअर लोअर एब्डोमिन में पेन एब्डोमेन होता जहाँ था। यूट्रस है वहां होता था, बैक में होता था, Yes, थाइस हाँ। में होता ना ना था। और सर, केवल इफेक्ट क्या होते थे बॉडी में, और क्या होते थे इफेक्ट, मतलब खाने सर पीने का, बैकएक फूड होता था, में? और एकदम कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी सर उस टाइम पे, 2 डेज तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब ऑल अच्छा। टाइम लगता था कि सिर्फ लेटे रहें बस। और पेन बहुत ज्यादा होता था, मतलब अगर उठ के अगर हम चलने की कोशिश करते थे, तो जैसे नहीं पूरा हम स्ट्रेट होके चलते हैं हम लोग नॉर्मल वे में, वैसे नहीं चल पाते थे, झुक के चलते थे ऐसे। अच्छा, और मूड पे क्या इफेक्ट होता था, माइंड पे? बहुत एनजाइटी रहता था सर उस टाइम पे। अच्छा। अच्छा, और फिर और क्या होता था, और आप क्या मेडिसिन लेती थी, क्या मेडिकेशन लेती थी? मेडिसिन में सर, जब मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था तो मैं 10 मूला रिस्ट लेती थी उस टाइम पे। और कितना कितना डोज ये में, बच्चों को बताइए, सर बच्चे भी लोगों को देंगे। हाँ। यही सर, 4 ढक्कन 10 मूला रिस्ट, और 4 उसमें 4 चम्मच पानी मिला के, हाँ। अच्छा। और मैं ये M2 टोन सिरप, हाँ, M2 हेलो, सिरप बहुत अच्छा है। हाँ, और? वो भी लेती थी, तो उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता था मेरा पेन। और जी। फिर सर जब डिलीवरी हुई मेरी, जब मेरी बेबी हुई, तो उसके बाद मुझे पेन एक भी नहीं होता अब, मतलब कि नॉर्मल वे में हम पहले तो काम भी नहीं कर पाते थे, जैसे जब पेन होता, मतलब मेंसेस के टाइम पे हम कुछ काम नहीं कर पाते थे, 3 डेज तो सिर्फ लेटे रहते थे। और फिर अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे से, मतलब जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद हमारा मतलब नॉर्मल वो चलता है, रूटीन चलता है। हाँ, मतलब जो बुक में लिखा है वो सच में है वैसा? वो सच है सर, यस सर, वो हाँ। जो आपने आज पढ़ाया वो सारी चीजें, मतलब वो होती है पेशेंट में। अच्छा, तो अभी मेंसेस में कुछ भी पेन नहीं होता, एकदम अब नॉर्मल है? कुछ भी पेन नहीं सर, अब बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो गया। अभी हम कल सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि उन्होंने
पहले इंजेक्शन लिए थे एक डॉक्टर से कि बच्चे ना हो जी 3 मंथ्स तक के बेबी नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लिए थे। उसके बाद से उनको कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है, डेली कंटिन्यू ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होता है। अच्छा हाँ, तो सर उनको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने पहले तो वो टाइम पे उनको दिया था। जी हाँ, पॉज भी दिया था। उसके मैं बाद ऐसे दवाई तो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उनका केस समझना होगा, तो मुझे उनसे बात करवा दीजिए, पूरा केस टेकिंग करना होगा। ऐसे में दवाई बताता हूँ तो मेंसेस रोकने के लिए ये है बोलबत रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुक चूर्ण, अशोका रेश, कुमारी असव, कुटजा रेश। नाग केसर भी तो उसमें, क्या नाग केसर चूर्ण भी तो यूज होता है नाग उसमें। केशर चूर्ण दे सकते हैं, शोणी स्थापन गण दे सकते हैं, तंडुलोदक लेकिन ना हमें केस अच्छे से समझना पड़ेगा, तब ज्यादा परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन बता सकते हैं हम लोग। सर लेकिन मुझे ये पूछना था, अगर कोई रैंडम पेशेंट ऐसे आता है अपने पास और हम ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो सर क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? हो सकता है बाद में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो कितना दिन तक रिजल्ट मिलेगा? मतलब वो टेम्पररी ये मेडिसिन सब दिया तो पेशेंट का सिम्टम तो कम हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहना चाहिए, रिकरेंस नहीं होना चाहिए कि दवाई बंद किया तो फिर से आ गया मेंसेस का प्रॉब्लम फिर से हो गया। ये नहीं होना चाहिए ना। परमानेंट ठीक करना है तो हमें कॉज निकलना पड़ता है पूरा, उसमें क्या पैथोलॉजी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या मतलब उसमें एंडोमेट्रियोसिस है, क्या क्या मतलब कॉज क्या है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट में क्या है, वो सब देखना। क्योंकि फाइब्रॉइड जब अगर होता है, फाइब्रॉइड में भी बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आते हैं, तो फाइब्रॉइड का पैथोलॉजी है कि नहीं वो देखना पड़ता है। कभी बल्कि यूट्रस रहता है, यूट्रस का जो शेप रहता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हैवी मेंसेस आते हैं। ये तो सर सोनोग्राफी की रिपोर्ट में जी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में सर दिया था कि प्रेजेंस ऑफ ब्लडी मटेरियल ऐसे कुछ तो सर उधर था। हाँ, वो रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं देख के फिर आपको अच्छे से बताता हूँ। ओके सर, ठीक है सर, मैं पेशेंट से मिलूंगा तो आपको बताता हूँ। जी, और पेशेंट है क्या किसी के पास कोई ऐसे गायनेक रिलेटेड? सर जी सर, हेलो। हाँ, कोई तो बोल रहे हैं। जी बोलिए। जी जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसी और को कुछ बताना है तो बताइए ना। यस सर, जैसे कि सर किसी को फिब्रॉइड और यूट्रस में, और उसके बाद बोलवा यूट्रस रिमूव करवा ले अपनी, तो उसके बाद उसको कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको, मतलब ऐसे कि बिल्कुल पर्सनालिटी चेंजेस होने की। आप थोड़ा जोर से बोले ना, आप क्या पूछते हैं, क्वेश्चन फिर से पूछिए। सर कि अगर किसी को ना यूट्रस में मानो फिब्रॉइड है, उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हाँ तो जी उसको बोला गया कि आप ऑपरेट करवा लो, उन्होंने ऑपरेट करवाया, तो उसके जी। बाद उनको ना थोड़ी साइकोलॉजिकल थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम होगी उनको, उनकी थोड़ा पर्सनालिटी चेंज होगी उनकी, बिल्कुल ही उनको हाँ गलत कुछ पता नहीं लग रहा अब, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं वो। और हाँ। उन्होंने ना ऐसे कुछ मतलब जो ड्रीम्स उन्होंने देखे ऐसे, तो उनको अब तक मतलब दवाई चल रही है उनकी 20 दिन हो गए, तो उनको अभी तक डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि ड्रीम है या रियलिटी है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे। हाँ, तो इसको ना सिजोफ्रेनिया बोलते हैं एलोपैथी में, सिजोफ्रेनिया। तो आप ना एक काम करिए, ये मेरा लेक्चर होने के बाद मुझे कॉल करिए, मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। मेरा पीएचडी और एमडी इसी पे हुआ है, तो मैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताता हूँ, वो स्टार्ट करिए, तो वो ना अपने आप वो नॉर्मल हो जाएंगी, आयुर्वेद से पूरा ठीक हो सकता है ये चीज। ओके सर, थैंक यू सर। ये लेक्चर होने के बाद मुझे कॉल करिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेशेंट को आप ही ठीक कर सकती हैं, मैं आपको सारा दवाई बताऊंगा, आप ठीक कर दीजिएगा। ओके सर, आई विल कॉल यू। और कुछ असली में वो जो हिस्टेरेक्टोमी जो किया है ना, यूट्रस रिमूव किया है, ये तो करना गलत है। फाइब्रॉइड है तो एलोपैथी के डॉक्टर्स को आता ही नहीं कि फाइब्रॉइड को कैसे ठीक करना है, पूरा क्या करते हैं शॉर्टकट, ये पूरा यूट्रस से निकाल देते हैं। आयुर्वेद इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि हम लोग स्त्रोतस का वही चीज निकाल दे रहे हैं। एक पेशेंट है हर मंथ में, मैं बताता हूँ एक मिनट क्या होता है। यूट्रस अगर हमने निकाल दिया तो यूट्रस ही निकाल दिया, तो उसके बॉडी में रहेगा क्या? वो पूरा आशय निकाल दिया, तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं उसके, इसलिए ये ट्रीटमेंट गलत है। सर ये चीज मेघनाथ जी होती का है, जी ये एलोपैथी डॉक्टर यही करते हैं सर, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड भी हुआ तो यूट्रस ही अलग कर देते हैं वो। जी, तो इसीलिए हम ना फाइब्रॉइड के लिए बहुत अच्छा, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं,
जो मेदोपाचक, मांसपाचक, फलघृत और कुमारी जो रहता है, घृत कुमारी, उसको अगर गुड़ के साथ खाएंगे तो फाइब्रॉइड ठीक हो सकता है। फिर कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा वटी, फिर प्रव्याध रसवटी, ग्रंथि पाचक वटी, रौद्र रस, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो 3 महीना अगर खाते हैं तो 100% वो ठीक हो जाता है। एक क्वेश्चन कुछ आए हैं। मेघना जी का क्वेश्चन है कि सर आफ्टर यूजिंग PSI फॉर 3 to 6 साइकिल इन अनमैरिड गर्ल एंड इफ पेन इज स्टिल देयर प्रेजेंट व्हाट शुड बी डन। तो अगर एलोपैथी से वो ठीक नहीं हो रहे तो आयुर्वेद के पास आइए। वो पेशेंट का केस मेरे को बताइए, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो 3-4 महीना लेना है तो वो ठीक हो जाएगा। जब एलोपैथी काम नहीं कर रहा है तो आयुर्वेद लीजिए। गोविंद शरण शुक्ला जी का क्वेश्चन है, एक पेशेंट है, हर मंथ में MC आती है बट ब्लीडिंग बराबर बनी रहती है और मेडिसिन में एलोपैथी में इथामेस्टाइल इंजेक्शन और आयुर्वेद का गाइनोमैक्स एंड मेडिसिन दी है बट रिलीफ था बट अब नहीं है। तो आप ना ये केस मुझे बताइए गोविंद जी, मैं इसको अच्छे से आपको बताऊंगा और आप ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए और पेशेंट को फायदा हो जाएगा, मेंसेस रेगुलर आने लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो सर जी नमस्ते सर। सर मेरी नमस्ते। पेशेंट थी जी 17 साल की थी सर और वेट जी। उसका था 56 kg। तो जी उसको हैवी ब्लीडिंग होती थी, कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होती थी और 2-3 महीने तक कभी कभी स्किप कर जाता था मेंसेज उसका। जी जी। जी तो तो फिर उनका खान पान आपने देखा क्या कि जंक फूड ज्यादा खा रही है, बाहर का खा रही है? यस सर। तो मैंने उससे पूछा तो जंक फूड तो लिया, मैंने इसका हिस्ट्री तो बताई कि जंक फूड ज्यादा लेते हैं, मतलब खाती होती थी ज्यादा और उस भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो मैंने शुरुआत में 15 दिन के लिए त्रिफला गुगलू चलाया था और संजीवनी बट्टी 15 दिन के लिए। तो उससे फिर फायदा उसके हुआ? बाद हाँ सर, उसके बाद फिर 90 डेज के लिए 3 महीने के लिए मैंने कंचनार गुगलू और कल्याण घृत चलाया था। तो सबसाइड तो हो गया क्योंकि यूजी कराया था। तो 17 mm का मुझे ओरियन सिस्ट दिखाया था, राइट ओरियन सिस्ट। जी तो उसके बाद तो सबसाइड हो गया ये, मतलब नॉर्मल हो गई रिपोर्ट। लेकिन मैं ये बस जानना चाहता हूँ फिर रियाकर हो सकती है क्या, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि रियाकर हो सकती है। ये क्या हो सकती है? फिर से रियाकर हो सकती है, फिर से हो सकता है ये? फिर से हो सकता है ना। खाना पीना उनका जंक फूड जो रहेगा, बाहर का खाना पीना वो नहीं चाहिए, ज्यादा तेल मिर्ची मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए उनको। फिर से राइट उनको खाना पीना पे कंट्रोल करना पड़ेगा। घर का खाना खाना है, ताजा खाना खाना है, वो खाने से फिर नहीं होगा। अगर खाएंगी बाहर का तो फिर से बीमारी होगी। कोई भी बीमारी ऐसे नहीं होती है, भगवान ने हम सबको जो भी दिया है शरीर एकदम अच्छा दिया है, हम लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं। आप कहाँ पे हैं राकेश कुमार जी, कौन से सिटी में? सर आजमगढ़। आजमगढ़। तो आप क्या सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है? नहीं सर, 3rd ईयर में है सर। तो आपने तो कितना अच्छा दवाई दिया अपने पेशेंट को, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा है। सर ये कई जी ये रिसर्च पेपर पढ़ रहा था मैं, एक जर्नल था तो उसी में जी। देखा मैं। तो फिर पेशेंट भी मिल गया 1 महीने बाद, तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं इसको कितना अच्छा रिजल्ट जी मिलता है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसे ही आप और भी पेशेंट देखते रहिए, अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो मुझे पूछिएगा, मैं आप लोग को गाइड करूंगा, तो सब पेशेंट को फायदा होगा। आज आप फ्री होंगे कितने बजे? तो मैं एक पेशेंट के साथ पेशेंट के लिए डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा। तो मुझे 6 से 10 बजे के बीच में शाम को कॉल करिएगा ना, क्योंकि अभी मेरे पेशेंट आएंगे, फिर मुझे दिन में 3 बजे लेक्चर लेना है, फिर 5 बजे लेना है, तो मैं 6 से 10 के बीच में फ्री रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई है जिनको बताना है, कुछ डिस्कस करना है? सर 3 बजे आप कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर लेते हैं? मैं आयुष दर्पण जो जर्नल है ना, वहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स पे मैं लेक्चर लेता हूँ, तो उसमें 40,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आते हैं। आयुष दर्पण, मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, आप लोग सब ज्वाइन हो जाइए। तो आयुर्वेदिक स्किन डिजीजेस पे क्या क्या देना चाहिए ये लोगों को मालूम ही नहीं है। आपके पास कोई रैशेस के आ रहे हैं, विटिलिगो के आ रहे हैं, एक्जिमा के आ रहे हैं, क्या देना है किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और जो मेरा चीज है वो अगर सुनेंगे तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। सीमा जी का क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीमा जी का क्वेश्चन है, सर पेशेंट विद प्राइमरी डिस्मेनोरिया विद हैवी पेन एंड हेवी ब्लीडिंग
till 8 to 9 days twice a month. It was continued even after pregnancy, and after the age of 35 years she got menopause without any menopausal symptoms. नहीं सीमा जी, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो नहीं होगा ना, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का एज बताएं, वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा और उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, मतलब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा, या तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा या फिर कोई पैथोलॉजी होगा। ये केस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप मुझे 6 बजे के बाद कॉल करिएगा तो फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। हर्षिता जी का क्वेश्चन है, पेशेंट इज 38 years, irregular menstrual cycle and spotting remains whole month, bleeding with clot, mild pain in lower abdomen। तो हर्षिता जी, इनका ना आपको केस टेकिंग करना पड़ेगा। मीन्स वो बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली ऐसा खाती हैं क्या, या फिर उनको मतलब उनका खाना पीना जो है ना वो रक्त और पित्त इसको विशिएट कर रहा है, मतलब उसको खराब कर रहा है, उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले खाना पीना अच्छा करना है, घी में खाना करना है, और ना कुछ कुछ मेडिसिन आता है जैसे फलघृत आता है, कश्मीरी घृत आता है, और ऐसी दवाइयां जब देंगी। आप मुझे एक केस बताइए शाम को आफ्टर 6 to 10, ठीक है तो सर। मैं ये केस का आप ठीक करेंगी, आई विल गाइड यू, और फिर ना ये पेशेंट 100% ठीक हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बताऊंगा। ओके, थैंक हेलो सर। यू जी। सर ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आयुर्वेद में क्या यूज होता है? जैसे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सारा आयुर्वेद में है ना, मुझे अभी देख के मैं बताऊंगा आपको, ओके सर। मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताता हूँ। आयुर्वेद में है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सारी, जैसे नीम का है, नीम का कुछ पाउडर आता है, वो वजाइना के नीम तेल जो रहता है या करंज तेल आता है, वो अगर वहां पे वजाइना के थ्रू उधर लगा दें या पेनिस के ऊपर लगा दें और फिर इंटरकोर्स करें तो वो स्पर्मिसाइडल रहता है। तो वो और बहुत सारे हैं, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, मेरे सर के नोट्स में है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर। जैसे सर ये पेशेंट रहते हैं तो कॉपर टी से उनको वो होता है, मतलब दिक्कत साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, इंटरनल मेडिसिन भी है, टैबलेट्स भी है आयुर्वेद में, और ये भी है। मैं अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि इतने सारे मैंने गायनेक 90 कब पढ़ा था, 1999 में पढ़ा था, और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अब प्रैक्टिस में तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव के पेशेंट नहीं आते हैं, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के फिर बताऊंगा आपको। और पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है कि बंद करें लेक्चर? बंद करें?